है पंजाब करां की सिफ्त तेरी, है पंजाब करां की सिफ्त तेरी, पंजाब करां की सिफ्त तेरी, शाना दे सब सामान तेरे, जल पौन तेरा हरियाल तेरी, दरिया पर्वत मैदान तेरे। ओ बाबा नानक बाबा फरीद अपनी छाती ते पाले तू, दुनिया नू चानण देण लई कई रोशन दीवे बाले तू, तू आजादी दा आगू है तू कुर्बानी दा बानी है, हरे औकड़ पिया परावां दी तू है करदा अगवानी है, क्या चूड़े बीड़े फबदे ने जो बनमतियां मुटियारां दे, जद पान मदानी चाटी विच तद शोर उठन कुमकारां दे, कोई तुम्बदी है कोई कतदी है, कोई पींदी है कोई छड़दी है, कोई सिउंदी कोई परोंदी है, कोई वेला बूटे कटदी है, जद रात चांदनी खिड़दी है जद रात चांदनी खिड़दी है, कोई राग इलाही छिड़दा है, गिद्दे नू लोड़ा आंदा है, जो बनते बिरहा फिरदा है, ऐ पंजाब करां की सिफ्त तेरी, ऐ पंजाब करां की सिफ्त तेरी। ओ तेरी मां क्यों मिठी बोली दी जी कर दिया सिफ्त न रजदा है, उर्दू हिंदी दिया साजा विच सुरताल तेरा ही वजदा है, बसे रसे कर बार तेरा जीवे जागे परवार तेरा, मस्जिद मंदिर दरबार तेरा, मियाँ लाला सरदार तेरा, दुनिया सारी भी सोनी है दुनिया सारी भी सोनी है, पर तेरा रंग न्यारा है, तेरी मिट्टी दा खुला भी शाही महला तो प्यारा है, तेरे जर्रे जर्रे दे अंदर अपनत जई कोई बसदी है, तेरी गोदी दे विच बैंदियां ही दुनिया दी चिंता नसदी है, तेरी गोदी दे विच बैंदियां ही दुनिया दी चिंता नसदी है, ऐ पंजाब करां की सिफ्त तेरी, ऐ पंजाब करां की सिफ्त तेरी, ऐ पंजाब पंजाब है पंजाब। दोस्तों पंजाब दर्शन ते ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ
ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਹਸਤੀ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਹਸਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੀ ਹਸਤੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਰੀਰਕ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰੂਤੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਮੇਰੀ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਆਲੋਚਨਾ ਦੇ ਪਿਤਾਮਾ ਡਾਕਟਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀਵਾਨਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਆਲੋਚਨਾ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਸਿਧਾਂਤਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਉਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਹਸਤੀ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਵਤਾ, ਕਾਵਿਕਤਾ, ਭਾਵੁਕਤਾ, ਸੁਤੰਤਰਤਾ, ਸਵੈਮਾਣ, ਮੁਹੱਬਤ ਤੇ ਹੱਕ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਰਲ ਕੇ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰੂਪ ਬਣਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਸ ਰੂਪ ਦੀ ਉਹ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਮੂਰਤ ਸਨ। ਉਸ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਪੁੰਜ ਡਾਕਟਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀਵਾਨਾ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਇੱਕ ਸਤਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਦਰਸ਼ਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜੀਵਨ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਸਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਦੀਵਾਨਾ ਵਿਕਾਊ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਲੱਖ ਦਾ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਕੱਖ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਸਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਸਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕਦੀ ਕਦਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀਵਾਨਾ ਜੀ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹਸਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕੀਤੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ 1984 ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ MA 'ਚ ਦਾਖਲਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ, ਮੇਰੇ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਜ਼ਦੀਕ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਛਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਜਗਰਾਵਾਂ ਜਾ ਕੇ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੀ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਦੀਵਾਨਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ 1984 'ਚ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਇਤਫਾਕ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸਾਡੀ ਕਲਾਸ ਲੱਗੀ, ਉਹ ਕਲਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਕੰਡੋਲੈਂਸ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀਵਾਨਾ ਜੀ ਦੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੱਕਾ ਬੱਕਾ ਜਿਹਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਦੀਵਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੰਡੋਲੈਂਸ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਟੀਚਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆਏ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਏ, ਰਿਸਰਚ ਸਕਾਲਰ ਆਏ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਯਾਦ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਭਾਵੁਕ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀਵਾਨਾ ਜੀ ਦੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਗਿਆਨ
ਉਹਦਾ ਪੱਧਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਹਨੂੰ ਰਲਾ ਲਈਏ, ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀਵਾਨਾ ਜੀ ਦੇ ਇੱਕ ਫੁੱਟਨੋਟ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਜ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਡਾਕਟਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀਵਾਨਾ, ਔਰ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਰੀਡਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਰੁਤਬਾ ਉੱਚਾ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਜਾਂ ਮਾਣ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦੀ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀਵਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਣ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਮਾਣ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ, ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪਛਤਾਵਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਦੀਕ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ SN ਕਾਲਜ ਬੰਗੇ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਟੀਚਰ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਰਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਅਖੀਰਲੇ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਦੀਵਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਟੀਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੱਚਰ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਦੀਵਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੇ ਦੋਸਤ ਸਰਦਾਰ ਟਹਿਲ ਸਿੰਘ IPS IGP ਰਿਟਾਇਰਡ, ਉਹ ਵੀ ਦੀਵਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਰਹੇ। ਉਹ ਅਕਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਉਪਾਸ਼ਕ ਸੀਗੇ ਤੇ ਬੜੇ ਵਿਦਵਤਾਪੂਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਅਕਸਰ ਦੀਵਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਾਂਝੇ ਦੋਸਤ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੰਗਾ ਨਗਰ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਡਾਕਟਰ ਦੀਵਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਫੀ ਨਜ਼ਦੀਕ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਦਵਤਾ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਹੇਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਡਾਕਟਰ HS ਗਿੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਦੀਵਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਦੀਵਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਰਾਬਤਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦੌਰਾਨ ਡਾਕਟਰ ਦੀਵਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਬਾਰੇ, ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਦਵਤਾ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਨਾਂ ਲਿਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕ, ਸਾਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹੈਲਪ ਲੈ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਖਿਆਲ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਦੀਵਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੀ ਆ, ਅਗਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣ ਕਿਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਯਾਦਾਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਦੀਵਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਿਤੇ ਲਿਖ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਦੀਵਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਕਿਤਾਬ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਇਸ ਬਹਾਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਸੁਣਨਗੇ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਦੀਵਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ JPS ਉਬਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਦੀਵਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਡਾਕਟਰ HS ਗਿੱਲ ਜੀ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਦੀਵਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਇੱਕ ਵੇਰਵਾ ਛਾਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਦੀਵਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਕੋਈ 90 ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 79 ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੇ, ਉਰਦੂ ਦੇ ਵਿੱਚ 51 ਪੇਪਰ ਜਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਔਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਪਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ ਉਹ 15 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਹਲੇ ਛਪੇ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੈਕਚਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਖਿਆਨ ਦਿੱਤੇ 39 ਦੇ ਕਰੀਬ, ਉਹ
ਪਏ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹਲੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀਵਾਨਾ ਜੀ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰਾ ਹੀ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਰੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ JPS ਉਬਰਾਏ ਜੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲੇ ਨੂੰ ਸਪੁਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਵਿਦਵਾਨ ਕੋਲੋਂ ਛਪਵਾਉਣ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਿਟ ਕਰਵਾਉਣ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਲੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਰਦੂ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਵਤਾ ਵਾਲੇ ਕੰਮ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਤੇ ਅੱਜ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵਿਦਵਾਨ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਵੇ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀਵਾਨਾ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਤੋਂ ਕੋਈ ਲਾਹਾ ਲੈ ਸਕੀਏ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ, ਦੀਵਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਕਦੇ ਮੁੱਕਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੋਪ ਹੈਗਾ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰਾਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਡੈਡੀਕੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਡਾਕਟਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀਵਾਨਾ ਜੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਡਾਕਟਰ HS ਗਿੱਲ ਜੀ ਨੂੰ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਅੱਜ ਬੜਾ ਸ਼ੁਭ ਮੌਕਾ ਕਿ ਅੱਜ 13 ਜਨਵਰੀ ਡਾਕਟਰ HS ਗਿੱਲ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸੱਜਣ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਡਾਕਟਰ ਦੀਵਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਡਾਕਟਰ HS ਗਿੱਲ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ 'ਤੇ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਅਸੀਂ ਲੈਕਚਰ ਡਾਕਟਰ ਦੀਵਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ 13 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਡੈਡੀਕੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਹ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣਾਓ ਡਾਕਟਰ ਦੀਵਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹੀ ਸ਼ੇਅਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀਵਾਨਾ ਦੀ ਹਸਤੀ, ਡਾਕਟਰ ਦੀਵਾਨਾ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਇਸ ਇੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਦੀਵਾਨਾ ਵਿਕਾਊ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਲੱਖ ਦਾ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਕੱਖ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੁਣਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਦੀਵਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਔਰ ਮੈਂ ਬੜਾ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਗਵਾਹ ਹਾਂ ਕਿ ਡਾਕਟਰ HS ਗਿੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਦੀਵਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦੇਖਦੇ ਜਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀਵਾਨਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਭਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਦੀਵਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਾਂ ਹੋਰ ਲਊਂਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ JPS ਉਬਰਾਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਗਰ ਮਿਲੀਏ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਪ ਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅੰਬ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅੰਬ ਲੱਗਿਆ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦੀਵਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਲ, ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਪਲ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਵਿਖਿਆਨ ਡਾਕਟਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀਵਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਪਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਉਹ ਪਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਂਭੇ ਹੋਏ ਪਏ ਸੀਗੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਆਓ ਆਪਾਂ ਡਾਕਟਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀਵਾਨਾ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਰੂਤੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ ਤੇ ਨਿਹਾਲ ਹੋਈਏ। ओम तत्सत। भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में कहा है कि योग साधना के पहले ओम तत्सत कह लिया करो। ये नहीं लिखा कितनी दफ़ा कहो, मगर आमतौर पर 3 दफ़ा कहते हैं। ये इस वक्त जो मैं
आपकी सेवा में अपने जीवन का किस्सा पेश कर रहा हूँ, तो गोया ये मेरा अपने जीवन से एक तरह का योग है। अपने 1899 में मैं पैदा हुआ और आज 83 साल का हो चला हूँ। तो वो जो सारा एडवेंचर है, वो जो सारा नक्शा है, वो जो सारी एक दुनिया है, उससे मैं दोबारा योग कर रहा हूँ, मगर एक ऊपरली सतह पर, उसकी सतह पर नहीं। आप अंग्रेजी में भी कहते हैं कि आउटसाइडर सी मोर ऑफ द गेम। मैं अपने जीवन को अब इस तरह देख रहा हूँ कि जिस तरह मैं कोई और हूँ और ये जीवन और है, और मैं इसको देख के इसका लुत्फ भी ले रहा हूँ, और इसमें जो नकाइस हैं, जो उसमें ऐब हैं, जो उसमें खामियां रह गई हैं, त्रुटियां रह गई हैं, कमियां हैं, उनको भी साथ साथ देखता और विचारता चला जाऊंगा। मेरी जिंदगी बड़ी अजीब सी है हर पहलू से, मगर मैं इस पे शुरू से ही एक बहुत ऊंची सतह पर, ऊंचे स्तर पर खुद भी उठता हूँ और आपको भी ले जाता हूँ। छुटपन में ही मेरे सामने 4 समस्याएं थी, 4 मसले थे जिनको मैं हल करना चाहता था। एक तो ये था कि शायर कैसे बनते हैं, शेर कैसे लिखे जाते हैं, और अच्छी से अच्छी कविता किस तरह की होती है, उसमें उपमा और अलंकार कैसे होते हैं, कहाँ से वो लाए जाते हैं, पुराने या नए घड़ने पड़ते हैं, और उस कविता को जीवन के साथ मिला करके जीवन में परिवर्तन, तब्दीली किस तरह लाई जाए, ये पहला था। वजह भी साथ, जब मैं पढ़ता था 4वीं और 5वीं में, ख़ासतौर पर 5वीं किताब में जो 5वीं जमात के लिए मुकर्रर कर रखी थी उन्होंने, बुलबुल की फरियाद, ये इकबाल की नज़्म थी, या एक था जुगनू। जुगनू में आखिरी शेर था, इंसान है वही जहाँ में अच्छे आते हैं जो काम दूसरों के। 6ठी 7वीं में मैंने रसाला मार्तंड, उसके बाद साधु पढ़ना शुरू कर दिया था बाकायदा, और उसमें वेदांत, भक्ति, योग, ख्यालात की दुनिया, सूर्य नारायण मेर के आशार, गरज के एक वसी से वसी दुनिया, ख्याल की, तसव्वुर की, गुजरे हुए युगों की मेरे सामने आ जाती थी। तो मैं कहता था काश के मैं भी लिख सकूं। यहाँ तक कि मैं जब 1916 में 3rd ईयर में गवर्नमेंट कॉलेज में दाखिल हुआ, तो उस ज़माने में या संस्कृत या पर्शियन या अरबिक ज़रूर लेनी पड़ती थी आर्ट्स के लिए, अच्छा खूब ज़माना था। तो मैंने पर्शियन ली, तो पर्शियन की किताब पर मुझे, ये 1916 की बात है, मुझे याद है खूब अच्छी तरह से, वर्क उल्टा तो आगे लिख दिया मैंने सरदार मोहन सिंह दीवाना एडिटर। किसका एडिटर? नहीं, ये मेरा आदर्श था। और उस ज़माने में एडिटर अखबारों यानी ख़बरों को थोड़ा वो किससे वादर होता था या दिलचस्पी थी उसे, वो तो एक मामूली सी चीज़ थी। अखबार, ये ट्रिब्यून निकल गया, फलाना निकल गया, कोई जितने रिसाले थे वो सब 1 मैन थे रिसाले। शिबत लाल वर्मा
इतने रिसाले उन्होंने, मातंड, साधु, संत संदेश, विज्ञानी, रमता राम और जाने कौन कौन से रिसाले उन्होंने एडिट किए, सब उसमें उनके अपने मज़ामीन हुआ करते थे। दिल्ली से एक रिसाला निकलता था, सलाए आम खान बहादुर, मीर नासिर अली खान निकालते थे, मीर मुंशी थे पंजाब गवर्नमेंट के, वो भी अव्वल से आखिर तक सब अपने मजमूनों से उसे भर देते थे। कहते दूसरा कोई अच्छा लिखने वाला है नहीं। खैर, तो एक तो ये मेरे सामने समस्या थी कि मैं एडिटर बनूंगा, यानी लेखक कहना चाहिए, बनूंगा, राइटर बनूंगा और शायर बनूंगा। और वालिद साहब ने मुझे याद कराया कि तुम जब 8वीं में या 7वीं 8वीं में थे तो मुझसे पूछा करते थे कि पिताजी शेर कैसे लिखते हैं। अच्छा, दूसरी समस्या ये थी कि ये हिंदू धर्म में जो इतनी चीज़ें रखी हुई हैं, इनमें बज़ाहिर इतना इख्तलाफ है, इतना फ़र्क है, इतना रंगारंगी है, इसमें कोई वादत और उसमें एकता बेसिक तो बुनियादी तो होगी। वो कैसे कि अब इस वक्त मेरे पिताजी पढ़ रहे हैं भक्तमाल, अब कोई दूसरे साहब आ गए दूसरे दिन तो उन्होंने कहा कि मुंशी जी योग विशिष्ट से सुनाइए कुछ, वो कौन सा प्रकरण है, मोक्ष प्रकरण है, वो सुनाइए। तो उन्होंने वो पढ़ के सुना दिया, वो गुरुमुखी में था। उसके बाद 2-4 रोज़ के बाद कोई और साहब आए तो उन्होंने कहा जी कि वो जो श्रीमद् भागवत है उसका 11वां स्कंद जो है वो सुनाइए। उधर हमारे हाँ, मेरे अम्मा जान तो गुजर गई थी मैं जब 6 महीने का था। उसके बाद वालिद ने तो शादी की, इन्होंने कहा शादी से मुराद बच्चा होता है, लड़का मेरा है, अब शादी का तो सवाल ही नहीं उठता। कैसे पलेगा? जिसने वो महाराज में लिखा है गुरु नानक देव जी ने कि नानक चिंता सो करे जिन उपाया जग, फिक्र वो करेगा जिसने इसको पैदा किया है और मेरे यहाँ भेजा है। जिसने भेजा है वो, मैं तो ट्रस्टी हूँ इसका, ये अल्फाज थे उनके कि मैं तो ट्रस्टी हूँ, जितने दिन इसने मेरे पास रहना है उसका खाना दाने का हिसाब जो अल्लाह मियाँ देगा, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, मुझे तो पालना ही है, सिर्फ प्यार करना है और वो भी जो फुर्सत मिलेगी जितनी उसमें प्यार कर लूँगा, और बाकी सारा वक्त जो है वो गुजारते थे खिदमत में। अजीब साहब वो ज़माना था। सुबह उठे, वो थे पक्के सनातन धर्मी, मगर उसमें 30% या 40% सिखिज्म भी आ गया था। मसलन ये कि मंदिर में नहीं जाते थे मगर जनेऊ पहनते थे। वो गुरुद्वारे में जा कर के वो लंगर नहीं खाते थे मगर श्राद्ध जरूर करते थे। अमृतसर जाने का शौक इतना नहीं था जितना हरिद्वार जाने का। इतने सीधे आदमी थे, अब याद आता है तो सिर झुक जाता है। और गुरु नानक देव जी का ये गुरु ग्रंथ साहब का ये वाक्य याद आता है कि मात पिता सुत हर के दिए। माँ और बाप और बेटे ये सब उसकी दिए होते हैं। वो जानता है कि किसको किसके घर भेजना। मुझको किसी और घर में भेज देता जहाँ बीवी थी, अम्मा थी, मैं तो अम्मा से लड़ता रहता, अम्मा मुझे पीटती रहती और मैं उनको खिजाता रहता, चिढ़ाता रहता। बाप अगर पास इतना टाइम ना होता तो किसने आबे हयात मौलाना आज़ाद, मोहम्मद हुसैन आज़ाद की, या उस ज़माने में गवर्नमेंट हमें पंजाबियों को उर्दू पढ़ाने के लिए एक रसाला अतालीक निकालती थी, और ये योग वैशिष्ट और ये किसने पढ़ने थे? वो गाँव है बिल्कुल, कोई आदमी वहाँ पढ़ा हुआ है ही नहीं से मेरे वालिद के सिवा। एक आदमी कोई 2-4 जमातें वहीं से वालिद साहब के स्कूल में थी, अव्वल मुदर्रिस थे, पोस्ट मास्टर भी थे और स्टाम्प फरोश भी थे। तो इनका ये काम कि सुबह उठते तो देहात में आप जानते हैं कि उसके लिए फरागत के लिए बाहर जाते हैं, 3-3 मील 4-4 मील चले जाते हैं। तो वहाँ पर एक तत्ता चुआ था। तत्ता तो संस्कृत का वर्ड था, तप से बना हुआ गर्म पानी का चश्मा था। उन्होंने कहीं से वो निकाल लिया कि पता कर चला लिया और वहाँ नहाते। फिर अगर बाढ़ आ गई है या किसी ने गंदा कर दिया तो उसको साफ करते। पहला तो ये काम। नहाने के बाद फिर वो वापस आते, उसके बाद जाते गाय का दूध लेने किसी के। अब गांव में दूध बेचते नहीं हैं, मुसलमानों से तो वो लेते ही नहीं थे। तो एक घर में गाय थी हिंदू के घर में, तो वो
सिख ही था वो, उसी के घर में। तो वो भी ये चाहता था कि लोगों को न मालूम हो कि मैं दूध बेच रहा हूँ। दूध और दूध, वाह, बेचने की चीज़ें हैं ये कोई। लो जी, वो सुने, वो लाते, गड़वी में रख दिया दूध, और वो साथ मिश्री रख दी, उसे तवे की मिश्री कहते थे, ब्लॉक का ब्लॉक होता था। और मैं अब सो रहा हूँ, अब चले गए। अब चले कहाँ गए? रजिस्ट्री है कोई किसी औरत के, उधर मुसलमानों का इलाका था, 90% मुसलमान थे। तो वो बाहर से मनी आर्डर आते थे, वो मनी आर्डर तकसीम करने वहाँ जाते थे, 5-5 मील, 4-4 मील, 3 मील, 2 मील। फिर उसके बाद वो इनके एक दोस्त थे आत्मा सिंह, क्या नाम भी उनका बढ़िया था, और किरदार उससे भी बढ़िया था। यानी नाम में और किरदार में मुताबिकत थी। जैसे भगवान के जितने नाम हैं वो असल में तो उनके गुण है ना, गुणवाचक नाम है वो, तो वो सिफाती नाम है। तो वो मगर हमारा सिफत मौसूफ होना और सिफत जो उसकी है वो पूरी उनमें चमके, खुशबू दे, है नी, और उनको घर में कार रखे। तो वो आत्मा सिंह जी क्या करते थे कि वो दवाइयाँ बनाते थे। तो वो क्या कुछ बना करके तो दवाइयाँ दे देते थे पिताजी को कि भाई तुम जाते हो गांव में, देहात में, तो तुम उनको, कोई बीमार हो तो उनको दे आया करो। पिताजी दे आते थे। ये काम भी उन्होंने किया। बस वापस आ गए, 9 बजे के करीब आए। उसके बाद मुझे कह दिया कि अच्छा तुम आटा वाटा गूंद के कहीं से, ये वहाँ सब तो अपनी ताई चाची हैं इर्द गिर्द, और कौन है, तो वहाँ से वो रोटियाँ लगवा लेना, रख देना, और मैं स्कूल जा रहा हूँ। अब वो स्कूल गए। उस एडिटर या लेखक की प्रॉब्लम के साथ एक ये समस्या और जुड़ गई कि वहाँ जनाब 8 या 10 या 12 देहात से आदमी आते, लड़के आते हैं। इसके गांव का नाम है मुगल, इसके गांव का नाम है तुर्कवाल, इसके गांव का नाम है ढोक गुजरा, ये गांव है ढोक अहीर, ये गांव है मदवाल, ये गांव में झंगी, ये गांव है ठट्टा, ये गांव है सैयद कसरा, और ये गांव है गोरसियाँ। दूध को ऋग्वेद में तो गोरस कहा जाता था, क्लासिकल दूध तो बाद में आया। और ये सब गुज्जर थे, और वो आपस में बात करते तो कहते वो कुदर गचना है, कुदर गच से हैं। तो मैं कहते ये लोग संस्कृत बोलते हैं। गुज्जर और अहीर, फिर मुगल, तुर्क, दो चार लफ्ज ऐसे थे, मसलन सैनक, मट्टी का एक बर्तन होता है चौड़ा सा, जैसे हमारी परात होती है रोटी की, या कासक। ओम तत्सत। भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में कहा है कि ओम तत्सत। भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में कहा है कि योग साधना के पहले ओम तत्सत कह लिया करो। ये नहीं लिखा कितनी दफ़ा कहो, मगर आमतौर पर 3 दफ़ा कहते हैं। ये इस वक्त जो मैं आपकी सेवा में अपने जीवन का किस दोस्तों बड़ा इस गल का बड़ा अफसोस है सानू
ਕਿ ਇਹ ਆਡੀਓ ਫਾਈਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਈ ਸੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪੁਰਾਣੇ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਪਈ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਔਨ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕਦਮ ਉਸ ਦਾ ਫਾਰਮੈਟ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਲੇਟੈਸਟ ਫਾਰਮੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੁਬਾਰਾ। ਤੇ ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਵੇਂ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖਣਾ। ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਰਹੂਗੀ। ओम तत्सत। भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में कहा है कि योग साधना के पहले ओम तत्सत कह लिया करो। ये नहीं लिखा कितनी दफ़ा कहो, मगर आमतौर पर 3 दफ़ा कहते हैं। ये इस वक्त जो मैं आपकी सेवा में अपने जीवन का किस्सा पेश कर रहा हूँ, तो गोया ये मेरा अपने जीवन से एक तरह का योग है। अपने 1899 में मैं पैदा हुआ और आज 83 साल का हो चला हूँ। तो वो जो सारा एडवेंचर है, वो जो सारा नक्शा है, वो जो सारी एक दुनिया है, उससे मैं दोबारा योग कर रहा हूँ, मगर एक ऊपरली सतह पर, उसकी सतह पर नहीं। आप अंग्रेजी में भी कहते हैं कि आउटसाइडर सी मोर ऑफ द गेम। मैं अपने जीवन को अब इस तरह देख रहा हूँ कि जिस तरह मैं कोई और हूँ और ये जीवन और है, और मैं इसको देख के इसका लुत्फ भी ले रहा हूँ। और इसमें जो नकायस हैं, जो उसमें ऐब हैं, जो उसमें खामियां रह गई हैं, त्रुटियां रह गई हैं, कमियां हैं, उनको भी साथ साथ देखता और विचारता चला जाऊंगा। मेरी जिंदगी बड़ी अजीब सी है हर पहलू से, मगर मैं इस पे शुरू से ही एक बहुत ऊंची सतह पर, ऊंचे स्तर पर खुद भी उठता हूं और आपको भी ले जाता हूं। छुटपन में ही मेरे सामने 4 समस्याएं थी, 4 मसले थे जिनको मैं हल करना चाहता था। एक तो ये था कि शायर कैसे बनते हैं, शेर कैसे लिखे जाते हैं, और अच्छी से अच्छी कविता किस तरह की होती है, उसमें उपमा और अलंकार कैसे होते हैं, कहाँ से वो लाए जाते हैं, पुराने या नए घड़ने पड़ते हैं, और उस कविता को जीवन के साथ मिला करके जीवन में परिवर्तन, तब्दीली किस तरह लाई जाए, ये पहला था। वजह भी साथ जब मैं पढ़ता था 4वीं और 5वीं में, ख़ासतौर पर 5वीं किताब में, जो 5वीं जमात के लिए मुकर्रर कर रखी थी उन्होंने, बुलबुल की फरियाद, ये इकबाल की नज़्म थी, या एक था जुगनू। जुगनू में आखिरी शेर था, इंसान है वही जहाँ में अच्छे आते हैं जो काम दूसरों के। 6ठी 7वीं में मैंने रसाला मार्तंड, उसके बाद साधु पढ़ना शुरू कर दिया था बाकायदा, और उसमें वेदांत, भक्ति, योग, ख्यालात की दुनिया, सूर्य नारायण मेर के आशार, गरज के एक वसी से वसी दुनिया, ख्याल की, तसव्वुर की, गुजरे हुए युगों की,
मेरे सामने आ जाती थी तो मैं कहता था काश के मैं भी लिख सकूं। यहाँ तक कि मैं जब 1916 में थर्ड ईयर में गवर्नमेंट कॉलेज में दाखिल हुआ तो उस ज़माने में या संस्कृत या पर्शियन या अरबिक ज़रूर लेनी पड़ती थी आर्ट्स के लिए, अच्छा खूब ज़माना था। तो मैंने पर्शियन ली, तो पर्शियन की किताब पर मुझे ये 1916 की बात है, मुझे याद है खूब अच्छी तरह से, वर्क उल्टा तो आगे लिख दिया मैंने सरदार मोहन सिंह दीवाना एडिटर। किसका एडिटर? नहीं, ये मेरा आदर्श था। और उस ज़माने में एडिटर अखबारों यानी ख़बरों को थोड़ा वो किससे वादर होता था या दिलचस्पी थी उसे, वो तो एक मामूली सी चीज़ थी। अखबार ये ट्रिब्यून निकल गया, फलाना निकल गया, कोई जितने रिसाले थे वो सब वन मैन थे रिसाले। शिबत लाल वर्मा इतने रिसाले उन्होंने, मातंड, साधु, संत संदेश, विज्ञानी, रमता राम और जाने कौन कौन से रिसाले उन्होंने एडिट किए, सब उसमें उनके अपने मज़ामीन हुआ करते थे। दिल्ली से एक रिसाला निकलता था सलाए आम खान बहादुर, मीर नासिर अली खान निकालते थे, मीर मुंशी थे पंजाब गवर्नमेंट के, वो भी अव्वल से आखिर तक सब अपने मजमूनों से उसे भर देते थे, कहते दूसरा को अच्छा लिखने वाला है नहीं। खैर, तो एक तो ये मेरे सामने समस्या थी कि मैं एडिटर बनूंगा, यानी लेखक कहना चाहिए, बनूंगा, राइटर बनूंगा और शायर बनूंगा। और वालिद साहब ने मुझे याद कराया कि तुम जब 8वीं में या 7वीं 8वीं में थे तो मुझसे पूछा करते थे कि पिताजी शेर कैसे लिखते हैं। अच्छा, दूसरी समस्या ये थी कि ये हिंदू धर्म में जो इतनी चीज़ें रखी हुई हैं, इनमें बज़ाहिर इतना इख्तलाफ है, इतना फ़र्क है, इतना रंगारंगी है, इसमें कोई वादत और उसमें एकता बेसिक तो बुनियादी तो होगी। वो कैसे कि अब इस वक्त मेरे पिताजी पढ़ रहे हैं भक्तमाल, अब कोई दूसरे साहब आ गए दूसरे दिन तो उन्होंने कहा कि मुंशी जी योग विशिष्ट से सुनाइए कुछ, वो कौन सा प्रकरण है, मोक्ष प्रकरण है, वो सुनाइए। तो उन्होंने वो पढ़ के सुना दिया, वो गुरुमुखी में था। उसके बाद 2-4 रोज के बाद कोई और साहब आए तो उन्होंने कहा जी कि वो जो श्रीमद् भागवत है उसका 11वां स्कंद जो है वो सुनाइए। उधर मेरे अम्मा जान तो गुजर गई थी मैं जब 6 महीने का था। उसके बाद वालिद ने तो शादी की, उन्होंने कहा शादी से मुराद बच्चा होता है, लड़का मेरा है, अब शादी का तो सवाल ही नहीं उठता, कैसे पलेगा। जिसने वो महाराज ने लिखा है गुरु नानक देव जी ने कि नानक चिंता सो करे जिन उपाया जग, फिक्र वो करेगा जिसने इसको पैदा किया है और मेरे यहाँ भेजा है, जिसने भेजा है वो, मैं तो ट्रस्टी हूँ इसका। ये अल्फाज थे उनके कि मैं तो ट्रस्टी हूँ, जितने दिन इसने मेरे पास रहना है उसका खाना दाने का हिसाब जो अल्लाह मियाँ देगा, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, मुझे तो पालना ही है, सिर्फ प्यार करना है और वो भी जो फुर्सत मिलेगी जितनी उसमें प्यार कर लूँगा, और बाकी सारा वक्त जो है वो गुजारते थे खिदमत में। अजीब साहब वो ज़माना था। सुबह उठे, वो थे पक्के सनातन धर्मी, मगर उसमें 30% या 40% सिखिज्म भी आ गया था। मसलन ये कि मंदिर में नहीं जाते थे मगर जनेऊ पहनते थे। वो गुरुद्वारे में जाकर के वो लंगर नहीं खाते थे मगर श्राद्ध जरूर करते थे। अमृतसर जाने का शौक इतना नहीं था जितना हरिद्वार जाने का। इतने सीधे आदमी थे, अब याद आता है तो सिर झुक जाता है। और गुरु नानक देव जी का ये गुरु ग्रंथ साहब का ये वाक्य याद आता है कि मात पिता सुत हर के दिए, माँ और बाप और बेटे ये सब उसके दिए होते हैं। वो जानता है कि किसको किसके घर भेजना। मुझको किसी और घर में भेज देता जहाँ बीवी थी, अम्मा थी, मैं तो अम्मा से लड़ता रहता, अम्मा मुझे पीटती रहती और मैं उनको खिजाता रहता था, चिढ़ाता रहता। बाप अगर पास इतना टाइम ना होता तो किसने आबे हयात मौलाना आज़ाद, मोहम्मद हुसैन आज़ाद की
या उस ज़माने में गवर्नमेंट हमें पंजाबियों को उर्दू पढ़ाने के लिए एक रसाला अतालीक निकालती थी, और ये योग वैशिष्ट, और ये किसने पढ़ने थे? वो गाँव है बिल्कुल, कोई आदमी वहाँ पढ़ा हुआ है ही नहीं से मेरे वालिद के सिवा। एक आदमी कोई दो चार जमातें वहीं से वालिद साहब के स्कूल में थी, अव्वल मुदर्रिस थे, पोस्ट मास्टर भी थे और स्टाम्प फरोश भी थे। तो इनका ये काम कि सुबह उठते तो देहात में आप जानते हैं कि उसके लिए फरागत के लिए बाहर जाते हैं, 3-3 मील 4-4 मील चले जाते हैं। तो वहाँ पर एक तत्ता चुआ था, तत्ता तो संस्कृत का वर्ड था, तप से बना हुआ गर्म पानी का चश्मा था, उन्होंने कहीं से वो निकाल लिया कि पता कर चला लिया, और वहाँ नहाते। फिर अगर बाढ़ आ गई है या किसी ने गंदा कर दिया तो उसको साफ करते, पहला तो ये कहा। नहाने के बाद फिर वो वापस आते, उसके बाद जाते गाय का दूध लेने किसी के। अब गांव में दूध बेचते नहीं हैं, मुसलमानों से तो वो लेते ही नहीं थे। तो एक घर में गाय थी, हिंदू के घर में, तो वो सिख ही था वो, उसी के घर में, तो वो भी ये चाहता था कि लोगों को न मालूम हो कि मैं दूध बेच रहा हूँ। दूध और दूध, वाह, बेचने की चीज़ें हैं ये कोई। लो जी, वो सुने, वो लाते, गड़वी में रख दिया दूध, और वो साथ मिश्री रख दी, उसे तवे की मिश्री कहते थे, ब्लॉक का ब्लॉक होता था। और मैं अब सो रहा हूँ, अब चले गए। अब चले कहाँ गए? रजिस्ट्री है कोई किसी औरत के, उधर मुसलमानों का इलाका था, 90% मुसलमान थे। तो वो बाहर से मनी आर्डर आते थे, वो मनी आर्डर तकसीम करने वहाँ जाते थे, 5-5 मील, 4-4 मील, 3 मील, 2 मील। फिर उसके बाद वो इनके एक दोस्त थे आत्मा सिंह, क्या नाम भी उनका बढ़िया था, और किरदार उससे भी बढ़िया था। यानी नाम में और किरदार में मुताबिकत थी। जैसे भगवान के जितने नाम हैं वो असल में तो उनके गुण है ना, गुणवाचक नाम है, तो वो सिफाती नाम है। तो वो मगर हमारा सिफत मौसूफ होना और सिफत जो उसकी है वो पूरी उनमें चमके, खुशबू दे, है नी, और उनको घर में कार रखे। तो वो आत्मा सिंह जी क्या करते थे कि वो दवाइयाँ बनाते थे। तो वो क्या कुछ बना करके तो दवाइयाँ दे देते थे पिताजी को कि भाई तुम जाते हो गांव में, देहात में, तो तुम उनको कोई बीमार हो तो उनको दे आया करो। पिताजी दे आते थे, ये काम भी उन्होंने किया। बस वापस आ गए, 9 बजे के करीब आए। उसके बाद मुझे कह दिया कि अच्छा तुम आटा वाटा गूंद के कहीं से, ये वहाँ सब तो अपनी ताई चाची हैं इर्द गिर्द, और कौन है, तो वहाँ से वो रोटियाँ लगवा लेना, रख देना, और मैं स्कूल जा रहा हूँ। अब वो स्कूल गए। उस एडिटर या लेखक की प्रॉब्लम के साथ एक ये समस्या और जुड़ गई कि वहाँ जनाब 8 या 10 या 12 देहात से आदमी आते, लड़के आते हैं। इसके गांव का नाम है मुगल, इसके गांव का नाम है तुर्कवाल, इसके गांव का नाम है ढोक गुजरा, ये गांव है ढोक अहीर, ये गांव है मदवाल, ये गांव में झंगी, ये गांव है ठट्टा, ये गांव है सैयद कसरा, और ये गांव है गोरसियाँ। दूध को ऋग्वेद में तो गोरस कहा जाता था, क्लासिकल दूध तो बाद में आया। और ये सब गुज्जर थे, और वो आपस में बात करते थे, कहते वो कुदर गचना है, कुदर गच से हैं। तो मैं कहते ये लोग संस्कृत बोलते हैं। गुज्जर और अहीर, फिर मुगल, तुर्क, दो चार लफ्ज ऐसे थे, मसलन सैनक, मट्टी का एक बर्तन होता है चौड़ा सा, जैसे हमारी परात होती है रोटी की, या कासक, चमचा जिसे हम कहते हैं, वो टर्किश लफ्ज है। ये 2 लफ्ज वहाँ इस्तेमाल करते थे हम लोग। चमचा नहीं कहते थे, कासक ले आई, काशक या कासक ले आई, सैनिक ले आई। खैर, तो मैं कहता था ये ज़बानों का इतना इख्तलाफ जो है, ये क्या कहता है, ये कौन लोग हैं, ये इतने सब यही हैं, 5-5 कोस पर हैं, मगर अपने नाम अलग अलग रखे हुए हैं। और ये ज़बान का झंझट क्या है, क्यों ये एक ही चीज़ को वो, अब औरतों के तो मैं जाता ही था, क्योंकि अपनी तो माँ तो जा चुकी थी, और बहन नहीं, भाई नहीं, तो मैं
इनके यहाँ जाता था तो एक से बात करी तो उसने कहा मुंशी जी कुत्था गए ने, और उसने कहा मोड़िया मेरी गल सुन। दूसरी ने कहा मैं नहीं गल सुन। तीसरी ने इसी तरह का कह मेरी गल सुन। मैं कहती ये क्या तमाशा है, वो मैरी, वो मैनी, वो मैन की मुझ। तो मेरे दिमाग में ये बात भी जम गई कि जब कभी मुझे मौका मिलेगा मैं देखूंगा, एनालिसिस करूंगा, तहलील करूंगा इसकी कि ये क्यों ज़बानों में इतना फ़र्क, और फ़र्क कायम रहता है, कायम रखा है इन्होंने। वो उसने कुतर गच्छती का वो कुदर गच्छ से कहाँ संस्कृत का ज़माना जब संस्कृत ये अब तक उसको बोल रहे हैं। एक ये दूसरा, तो ये दोनों ज़माने ज़बान के मुताल्लिक ताकीक करना और सब ज़बानों को जानना और उनका लुत्फ़ लेना, और उस ज़बानों के कल्चर, उस ज़बानों में जो गीत है। तो मैं अकेला तो होता ही था, वाले तो इधर उधर अपना गुरुद्वारे रात को चले जाते थे, तो मैं जहाँ कहीं भी औरतें गीत गाती थी तो मैं चुप करके वहाँ दबक के एक तरफ बैठ के सुना करता था। वो इस तरह मेरा टेस्ट पोइट्री का डिवेलप उगमा, पहले एक पौधा जो है छोटा सा होगा। अच्छा, दूसरा ये कि ये अब मैं देखता हूँ कि भक्त लोग तो कहते हैं ये भक्तमाल है, मगर भक्तों की जब वाणी में सुनता हूँ, गुरु नानक देव की या कबीर, उसमें वेदांत भी सारा मौजूद है, उसमें योग भी मौजूद है, उसमें प्राणायाम भी मौजूद है खास तौर पर, उसमें जैन बुद्धिज्म जिसको कहते हैं वो ध्यान यानी शून्यता का जो डॉक्ट्रिन है वो भी मौजूद है। और अगर जिस वक्त मैं उपनिषदें उस वक्त मैंने नहीं देखी थी, मगर उसमें मैं देखता था सबसे ज़्यादा मुझे असर हुआ उसका योग विशिष्ट का। भक्ति यानी कृष्ण का प्रेम जो है वो तो था ही मेरे पास, बचपन मेरे साथ मेरे अंदर था, वो पता नहीं आया कहाँ से वो। क्योंकि मुझे याद है कि मैं एक रिसाला शांति निकला तक करता था, एक पंडित जी दत्त कहलाते थे वो, उनकी जात के, तो वो रावलपिंडी से निकालते थे, तो मैं उसमें शेर नज्म भेजा करता था श्री कृष्ण जी के संबंध में। अच्छा, उधर घर में थोड़ी सी जगह काफ़ी थी, तो हमारे पिताजी के गांव का, मैं तो गांव देवी में पैदा हुआ 1899 में, और वहाँ पिताजी अव्वल मुदर्रिस थे, मगर उनका जो आबाई गांव था उसका नाम था सैयद। तो वहाँ से एक मैरा आ गया। मैरा आप जानते हैं ना कि वो वेंगी होती है और उसके वो पानी लाता है लोगों के लिए, और वो दाने भी भूनता है। परपूंजा उसे कह लीजिए, या ये कि वो वेंगी लेके पानी लाता है बाहर से। तो वो कहने लगा कि साहब मैं पानी आपको ला दिया करूँगा, पानी 1.5 मील से आता था, और आप मुझे थोड़ी सी जगह लीजिए, मैं दाने शाम को भून लिया करूँगा। अच्छा, तो पिताजी जब बाहर जाते तहसील में स्टाम्प लेने के लिए या और किसी काम से, तो वो वहीं सोता था, तो वो मुझे रात को विष्णु पदे सुनाया करता था, और वो सारे रामायण पर मबनी थे। अच्छा, रासलीला भी मेरे ख्याल में एक दफ़ा मैंने देखी है 1914 से पहले 1912 से पहले इन 2 जगहों पर। तो मुझे रामायण से बहुत प्यार हो गया। चुनाचे में 1914 में जब हरिद्वार पिताजी ने बुला लिया, बड़े सीधे आदमी थे भाई, हरिद्वार पहुँचे। मैं 1914 में गवर्नमेंट दयाल सिंह कॉलेज में फर्स्ट ईयर में दाखिल हो चुका था, तो कुंभ था 1914 का, तो वहाँ से मुझे एक खत भेजा या तार भेजा मुझे कि आ जाओ, और अपना कोई एड्रेस नहीं दिया। अब हमें ये कहाँ ताब कि हम सोचें विचारें और मीन मेख निकालें और कहें कि साहब पता तो है नहीं, हम खाएंगे। हमने 3-4 रुपए हमारे पास थे, तो 2 रुपए किसी हमदर्द से लेकर के 5 रुपए जेब में डाले और हरिद्वार के लिए चले गए। वहाँ हरिद्वार गए, पहले 1914 का कुंभ है, और वहाँ शाम को गाड़ी पहुँची, तो स्टेशन से लेकर अब मुझे तो पता नहीं कहाँ जाना है, रास्ते में जाता हूँ। यानी देखिए ये चीज़ें बड़ी इम्पोर्टेंट है।
बहुत ही अहम है कि कल्चर जो है अगर वो घर कर जाए, इतनी जनरेशनों में जितनी जनरेशन नेचुरली घर कर लेती है, जितनी जनरेशन हमें गुजर गए हैं, तो हमारे लोग जो हैं उस कल्चर का जिंदा नमूना नस्ल दर नस्ल बराबर चले आते हैं, कोई फर्क नहीं आता। अनटिल कोई हिस्ट्री की तारीख की जो स्टार जो आंधियाँ आती हैं, जलजले आते हैं, ये बिजलियाँ कूदती हैं, ये तारीख की हैं, ये हिस्टोरिकल ये एक्सीडेंट्स जो है जब ये आते हैं तो ये कल्चरों में मुख्तलिफ कल्चरों में ये फिर तब्दीली पैदा करते हैं। मगर यहाँ तो सवाल ही नहीं है, क्योंकि हमारी कल्चर तो इतनी गई हुई है हमें कि जब तक एक भी हिंदू है, इंडियन है, वो कल्चर उसकी जिंदा है। मैंने एक जगह लिखा था कि ये जिस पत्थर को चाहें, ज़ेबे बुत याद आ जाएगा, ज़ेबे बुत कदा कर लें, बुतों की शान कायम है सलामत बुत कदे वाले, कि बुतकदों को तोड़ने से तो कुछ नहीं होता। हमारी कल्चर नहीं, तो मंदिर तोड़ दी तो क्या हुआ, क्योंकि मंदिर को बनाने वाले जो लोग थे उनकी श्रद्धा मौजूद है। वो जिस पत्थर को चाहेंगे ले करके आह्वान करके वहाँ मंदिर में रख देंगे, वो पूज्य देव बन जाएगा। तो मैं वहाँ गया तो इधर भी लोग लंबे पड़े हुए हैं, उधर भी पड़े हुए हैं फुल लेंथ, स्टेज हाथ की पौड़ी तक चला गया। वहाँ किसी ने मुझे पूछा भी नहीं, ये समझ के कि लड़का तो है ये 14-15 वर्ष का था, कहाँ की वासी, कहाँ के वासी, वैसे पूछते हैं। मगर वो दिन भर की बात खत्म हो गई, अब तो शाम हो गई थी, अंधेरा हो गया था। तो रात को मैंने भी वो भगवान की रस्सी, वो कुरान करीम में आता है कि खुदा जो है वो उसकी एक रस्सी है, पक्की रस्सी उसके नाम की, हबलुल मतीन, हबले मतीन, उसको पकड़े रखो, कोई डर नहीं है। तो मैंने कहा उस रस्सी को नहीं छोड़ूंगा। तो वहाँ पर मैं इधर उधर फिरता रहा, तंग आ गया, खाना भी नहीं खाया सुबह से। पिताजी का वही फिक्र कि वो कहाँ है, और वो फिक्र मेरा करते होंगे कि पहुँचा क्यों नहीं है, वहाँ से चला नहीं है। तार का कोई भेजने का सवाल ही नहीं, किससे डर। आखिर एक पुल बना हुआ था, अफसोस कि वो पुल दूसरे रोज सुबह टूट गया और बहुत सारी जानें ज़ाया हो गई, डूब गए लोग। पिताजी बच गए, वो ज़रा बहुत जल्दी, उनकी आदत है, बहुत 3 बजे से भी पहले उठ के उन्होंने स्नान कर लिया, कहने टाइम देखा जाएगा, फिर स्नान कर लिया, बहुत है गंगा माता में। तो वो एक पुल पर मैंने सोचा कि पुल पर रात गुजारूंगा, राम राम करता रहूँगा, क्या है। और गंगा का जो पानी का जो वो है, उस वक्त तो शुरू से मुझे बहुत मज़ा आता था। आवाज़ जो है, मैं समझता हूँ कि वो अनहद नाद उसी से सुनना शुरू हो जाता है। अगर आप अपने आप को उस बहते पानी के आवाज़ जो है उसके साथ एक सुर कर लें अगर, तो जाने आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे। खैर, तो रात मैंने वो 11 बजे तो वो पुलिस वाला कहने लगा, साहब आप तो यहाँ पर सो नहीं सकते। खैर, इस तरह कोई साहब आ गए, भगवान है, मदद करता है। तो अब सवाल ये था कि ये जो सारी इतनी किताबें हैं, ये किताबें मुख्तलिफ नहीं हो सकती। ये और रामायण है, महाभारत है, कृष्णायन है, या भगत लोग हैं, या योग विशिष्ट है, या मनुस्मृति भी थी हमारे यहाँ पंजाबी में हुई योग की, और भी उर्दू में एक आध किताब थी। और बाकी उपनिषदों का तो तर्जमा मैंने उसमें सूर्य नारायण मेर का पढ़ लिया, तो उन्होंने तमाम उपनिषदों का और गीता का उर्दू नज़्म शायद उम्दा तर्जमा किया था। वो वैसा शायद तो हिंदुस्तान में उर्दू में है नहीं। ये और बात है कि वो उनकी सारी तवज्जो अपनी कल्चर की तरफ थी। और नेचुरली अगर हिंदू ये काम ना करे तो फिर वो है क्या चीज़ है, वो अपनी बका जो है उसको कैसे हासिल कर बराबर बनाए रख सकता है अपनी हस्ती को। तो जब आपको सबको मालूम ही है ये तो कि पहला काम जो हम लोगों ने किया कि जिस वक्त मुसलमान आ गए तो मतलब 1830 40 50 के बाद ये तमाम अपनी जो किताबें थी उनको उर्दू में मुंतकिल कर दिया। पुराणों को, शिव पुराण का उर्दू तर्जमा फर्स्ट क्लास तर्जमा है, कभी आप पढ़िए। महाभारत का तर्जमा है, और बहुत सी गुरु गोबिंद सिंह जी की लाइफ पोइट्री में लिखी हुई है सारी। तो खैर वो सब पढ़ के तो मैंने कहा कि इसके पीछे कोई चीज़ है, कोई एक फंडामेंटल डॉक्ट्रिन है
चाहे वो योग है, चाहे वो सांख्य है, चाहे वो वैशेषिक है, चाहे वो उत्तर मीमांसा, पूर्व मीमांसा, तो ये सब इनके पीछे कुछ है। ये तो एक फेजेस है, जैसे कि एक सर्कल है, उसमें आप फूल बना देते हैं, छः तो बन ही जाते हैं 60-60 डिग्री के। तो ये फूल हैं, तो उन देखना चाहिए कि इनका एक दूसरे से संबंध क्या है। ये दूसरी मेरी प्रॉब्लम थी। तीसरी प्रॉब्लम ये थी कि मैं छुटपन में बैठा हुआ सुन रहा हूँ, योग वशिष्ठ पिताजी पढ़ रहे हैं, तो वो रामचंद्र जी पूछते हैं कि हे राम जी, हे गुरु जी, ये मोक्ष का मार्ग जो है वो कौन सा है? वो योग से प्राप्त होता है या ज्ञान से प्राप्त होता है? और ये लीला क्या है, जो भगवान की लीला कहते हैं, ये लीला क्या है? तो वशिष्ठ जी हंसे। ये मैंने सुना, 8-9-10 बरस का हूं उस वक्त, तो सुना तो वशिष्ठ जी हंसे। तो राम जी ने कहा, हे महाराज, गुरु जी महाराज, आप हंसे क्यों हैं? कहने लगे, हे राम जी, मैं हंसा इसलिए हूं कि करोड़ों दफा तुम राम बने, मैं वशिष्ठ बना। करोड़ों दफा तुमने यही सवाल किया, और ये करोड़ों दफा यही जवाब जो है मैं जवाब देने लगा हूं, मैं दे चुका हूं। एकदम मेरे ख्याल में, अच्छा, तो ये दुनिया जो है ये रेपिटिशनिस्ट यूनिवर्स है। आज 1962 में साइंटिस्ट ऑलमोस्ट 50% जो है ना, 50%, 100 के पीछे 50 जो साइंटिस्ट हैं जो फंडामेंटल है इन चीज़ों को, सृष्टि के बारे में वो करते हैं, वो रेपिटिशनिस्ट बने हुए हैं कि ये दोहराई जाती है बार बार, और उसमें पहले से मौजूद है। फिर उसके बाद मैंने जब पढ़ा, अब कोई 5-7 साल हुए, 5-6 साल हुए, मत्स्य पुराण में मैंने पढ़ा कि व्यास जो वेद है, ब्रह्मा जी के पास तो वेद है, वो पढ़ते थोड़ा है या उनको लिखते थोड़ा है, क्या वेद है उनके पास, ठीक है, मगर जो असली वेदों का मैं तो निर्माता ही कहता हूँ, मगर चलो उनको इकट्ठा करके एक के वेद के 4 वेद बनाने वाला, और उसमें और तरतीब देने वाला, फिर उसकी सारी जो चीज़ें हैं उनकी पर कमेंट्री और उनका हाल देने, किसी को और तो हाल पता ही नहीं है। वेद के जितने कैरेक्टर हैं वो मैं भी बाद में बताऊंगा, किसी ने नहीं को पता चलता सिवाय भगवान व्यास जी के। और व्यास जी ही वो ऐसी दुनिया में एक शख्सियत हैं जिन्होंने पुराणों में वेदों के सारे भेद जो थे ना वो उसमें खोल दिए। वहां तो सिर्फ नाम आते हैं, यहां इन्होंने कहानियां दे दी, और उसको ऐसा बना दिया कि वो एक ये खास बात है इंडियन कल्चर की, कि एक कहानी के 5 इंटरप्रिटेशन है, 5 मजेदार हैं। एक तो प्योरली हिस्टोरिकल एलिमेंट भी होगा इसमें, तारीखी कोई बुनियाद जो है उसकी किसी तारीखी वाक्य पर है। उसके बाद माइथोलॉजी, यानी अपर रीजन्स में, इंटेलेक्चुअल रीजन में भी वो इवेंट जो है वो मौजूद होंगे, शरीर में भी वो इवेंट मौजूद होंगे। तो इस तरह से मैंने फिर गीता जब पढ़ी तो मालूम हुआ कि ये जो प्रॉब्लम हिंदुइज्म में, एक तो रेपिटिशनिस्ट यूनिवर्स, दूसरा हिंदुइज्म की जो ग्रेटेस्ट सेट और डिस्कवरी है वो ये कॉरस्पॉन्डेंस बिटवीन अर्थ एंड हेवन, कॉरस्पॉन्डेंस बिटवीन ह्यूमन बीइंग एंड अर्थ, बिटवीन अर्थ ह्यूमन बीइंग एंड द सन। कहने का मतलब उर्दू हिंदी में ये कॉरस्पॉन्डेंस के लिए हमारे कोई लफ्ज़ है नहीं, तो इसको इस तरह लिखा गया है। नामदेव जी ने कहा है कि ब्रह्मंड पिंडे सो ब्रह्मंडे, जो आपके शरीर में है वही सब कुछ ब्रह्मांड में फैला हुआ है। यहाँ इसमें संकुचित है, सुखड़ा हुआ है, मगर स्ट्रक्चर सारी एक है, पूरी उसकी इसमें है। ये माइक्रो स्ट्रक्चर है और वो मैक्रो है, मैक्रोकाज़म और माइक्रोकाज़म। ये माइक्रोकाज़म है, छोटा संसार है, और वो बाहर जो है वो बड़ा, दोनों में मुताबिकत है। तो गुरु नानक देव जी ने फिर बाद में लिखा कि
ब्रह्मंडे सोखंडे, जो कुछ ब्रह्मांड में है, बड़े सारे संसार में एज ए होल है, वो हर एक पार्ट में है, हिस्से में है। बड़ी दिलचस्पी मुझे इसमें, शायर होने की हैसियत से, ज़बानदान होने की हैसियत से। कुछ मैंने गुरु धारण कर लिया था जब मैं 8 वर्ष का था, तो उनकी दीक्षा योग के मुतालिक मेरे पास थी, वो मैं करता था प्रैक्टिस। तो ये थियरी आई कि ये जो सबसे इम्पोर्टेंट थियरी ये है कि ये न सिर्फ एक दूसरे से मुताबिकत करते हैं, मैं अभी उसकी थोड़ी तशरीह करता हूँ, बल्कि वो एक दूसरे से इस तरह अलग तो हम मालूम होते हैं कि ये पृथ्वी अलग है, मैं अलग हूँ, आसमान, मगर हैं आपस में इस तरह पर गुथे हुए हैं। एक ऐसे तरीके हम देख नहीं सकते मगर जानते हैं। चुनाचे सबसे पहला नॉन एरियन जिसने, खत्री तो था ही वो, क्षत्रिय तो बुद्ध ने लिखा है। मैंने उसकी ये कोटेशन जो है, उसके ये अल्फाज जो हैं अपनी किताब न्यू लाइट ऑन बुद्ध फर्स्ट सरमन, बुद्ध की जो पहली उनकी व्याख्या थी अपने तजर्बों की, अनुभवों की, तो उस पर मैंने नई रोशनी डाली है। तो उसमें बुद्ध लिखता है कि जो कुछ भी संसार में किसी रूप में है, सूक्ष्म रूप में है, स्थूल रूप में है, सात्विक है, राजसिक है, तामसिक है, वो सब इस 6 फुट के ढांचे में, 6 फुट ऊंचे के ढांचे में सब कुछ वो मौजूद है। तो और फिर बाद में मेरी किताब का जिसका मैं जिक्र करूंगा, म्यूजिक, मैथमेटिक्स, माइथोलॉजी एंड मेटाफिजिक्स में, उसमें आप देखिए तो आपको ये मालूम होगा कि मैंने वो छापी है, दूसरों को तो पता भी नहीं है उन चीज़ों का, कहाँ कहाँ से मैंने ली हैं, कई पुरानों से, कोई दूसरे ग्रंथों से। हाँ जी दोस्तों, ये डॉक्टर मोहन सिंह दीवाना जी ਦੀ उस वार्ता ਦਾ, उस डिस्कोर्स ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪਾਰਟ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਕਈ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਆਉਣ ਦੀ ਜਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਖਰਾਬ ਆਉਣ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਧਰੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹਦਾ ਫਾਰਮੈਟ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫਾਈਲ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਪਾਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਡਾਕਟਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀਵਾਨਾ ਜੀ ਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਅਗਲੇ ਪਾਰਟ ਦਾ। ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ 1950 में बच्चे देहरादून सन तो मैं अमृतसर से। हाँ, ये जिक्र 1950 का है गालबन। बच्चे देहरादून में थे और मैं अमृतसर में था, तो मैं हफ्ते अशरे के बाद वहाँ जाता, एक दिन इतवार को रहता वहाँ और सोमवार को वापस आ जाता। तो वहाँ एक मैं शनिचर को पहुंचा था, तो वो एक स्वामी जी आ गए, स्वामी शब्दानंद, तो रहेंगे वो मेरे पास ठहरेंगे। बीवी ने बुलाया, कहने लगी हमारे पास इस वक्त 2 तो 4 पाइयाँ हैं कुल, और कपड़े लत्ते भी ज़्यादा नहीं हैं, चूँकि हम लुटे लुटाए आए हैं, कुछ है नहीं हमारे पास, कुछ हमने बनाया भी नहीं अभी। तो स्वामी जी को कहो कि ये मंदिर में कहीं ठहर जाए। तो मैंने स्वामी जी से कहा कि स्वामी जी आप इधर मंदिर है एक देहरादून में, वहाँ आप ठहर जाइए। तो वो ठहर गए। दूसरे दिन मैं गया उनके यहाँ। वो मंदिर जो है वो शिवाला कहलाता है, और एक ही बाज़ार बड़ा जो है पलटन बाज़ार देहरादून में, वहाँ पर है। नीचे शिव जी का मंदिर है, शिवलिंग है, और ऊपर कृष्ण जी का मूर्ति है। तो ऊपर हम गए तो स्वामी जी बैठे हुए थे और एक और साधु वहाँ लेटे हुए थे, पेट बाहर निकला हुआ,
छोटी सी दाढ़ी और बाल बहुत थोड़े थे, और वो सो रहे थे। तो मैं जब ऊपर गया तो मैंने, वो जो साधु सो रहा था, बूढ़ा सा लगता था, मैंने कहा ये अजीब साधु है कि कृष्ण जी की मूर्ति सुंदर, और इधर भैया 9-10 बजे का वक्त है, पूजा नहीं पाठ नहीं, ये यहाँ सो कैसे रहा है ये। मेरे दिल में कुछ ऐसे घृणा कैसे ख्याल आए। तो वो जो स्वामी जी थे, स्वामी शब्दानंद जिन्हें मैं मिलने गया था, वो कहने लगे कि भाई मैं तो सिगरेट पीता हूँ, तो मैं तो नीचे जा रहा हूँ सिगरेट लाने के लिए, और तुम यहाँ बैठो, मैं अभी आ जाता हूँ। मैं वहाँ बैठा तो वो यहाँ लेटे हुए हैं स्वामी जी, जो साधु दूसरे, और मैंने मुंह इधर कर लिया। उधर सड़क है, सड़क के पली तरफ मकान है, तो मैं उन मकानों के ऊपर देखता रहा, इधर देखता। जब मैंने इधर मुंह किया तो क्या देखता हूँ कि एक आदमी यहाँ खड़ा है, एक दूसरा आदमी खड़ा है, बीच में एक औरत है, और वो स्वामी जी जो सो रहे थे वो बैठे हुए हैं, और हिंदी में वो योग के संबंध में कविता, जो वो रुबाई, वो क्या चौपाई का जो मीटर है, उसमें बोलते चले जा रहे हैं, बोलते चले जा रहे हैं, बोलते चले जा रहे हैं। ये 3 आदमी कहाँ से आ गए, 2 मर्द और ये औरत कहाँ से आ गई। और ये स्वामी जी, मैंने तो तमाम कोई योग पर जो किताब है किसी हिंदी राइटर की मैंने छोड़ी नहीं, मैन्युस्क्रिप्ट में भी मैंने पढ़ ली है, ये कहाँ से बोल रहे हैं, ये कौन सी किताब से, ये सब इन्होंने खुद लिखा है। हैरान। फिर मैंने मुंह इधर कर लिया, क्योंकि उनकी, स्वामी जी की तो पीठ थी मेरी तरफ, और सामने वो थे, ये मर्द है, ये भी मर्द है और औरत है। खैर थोड़ी देर में मैंने, जब उन्हें स्वामी जी ने बंद किया बोलना, तो मैंने इधर मुंह किया, तो स्वामी जी वो तीनों गायब, और स्वामी जी का मुंह मेरी तरफ इधर है। अब मैं खड़ा हो गया, खड़ा होकर तो स्वामी जी के सामने हाथ इस तरह जोड़े, तो मैंने कहा आप योग, इतना ही मैंने कहा। तो स्वामी जी अंग्रेजी में जिस कहते हैं स्ट्रेटन इज बैक, इस तरह खड़े हो गए करके कहने लगे, 750 बरस से कामरूप पीठ में फंसे हुए हो, आगे चल नहीं सकते, और मुझसे पूछते हो कि तुम योग जानते हो। ये पहला मेरा एक्सपीरियंस और हाईएस्ट एक्सपीरियंस था किसी आदमी का मेरे मुतल्लिक बताना, डेफिनेटली, कि कहाँ पर अटके हुए हो, कितने बरस हो गए हैं, और मेरे सामने ये मिरेकल करके दिखाया। बहाना वो आदमी है, वो देहाती लगते थे, कहाँ से वो आ गए, चले कहाँ से गए, वो आई बाई शाई देखते रहे, ये बोलते रहे, सब बिल्कुल फर्जी। तो मैंने देखा, देख के बाद फिर मैंने उनके चरण छुए। ये एक्सपीरियंस ऐसा है कि बहुत से जो लोग ढिलमिल यकीन वाले हैं या जो नहीं मानते हैं, उनको भी ये ऐसा वाकया है कि वो उनको काफ़ी ज़बरदस्त तरगीब देता है। मगर आगे सुनिए। चंद दिन गुजरे, मैं आता जाता रहता था, तो महीना 1.5 महीना गुजरा, तो मैं स्वामी जी के पास गया। मैंने कहा स्वामी जी आप यहाँ हैं, मैं अमृतसर में हूँ, डिपार्टमेंट हमारा अमृतसर में आ गया था पंजाबी का, तो आपको मुझे कोई तकलीफ़ कभी हो तो मैं क्या करूं, आप मुझे कोई तस्वीर अपनी दे दीजिए। कहने लगे बहुत अच्छा, अगली दफ़ा आओगे तस्वीर दे देंगे, मगर अब तुम ऐसा करना कि जब ज़रूरत हो तो वहाँ पर एक मंदिर है, उस मंदिर के पास एक दरख्त है और उधर नहाने की जगह है, तो तुम वहाँ स्नान कर लिया करो, जब कोई मुसीबत तकलीफ पड़े, जो कुछ भी हो ज़रूरत हो तो वहाँ स्नान कर लिया करो। मैं अमृतसर पहुँच गया, ये बात किसी एक इतवार की है, मैं सोमवार पहुँच गया। वहाँ
3 दिन मुतवातर मैं ढूंढता रहा, जो कोई साधु मिले उससे पूछूं कि कौन सा मंदिर कोई है यहाँ, और उस वहाँ दरख्त भी है और पानी भी है। एक दिन हाल बाज़ार में एक महात्मा मिले, साधु सन्यासी थे, तो कमंडल उनके हाथ में था और मेरे ख्याल में चिमटा भी था। तो उनसे मैंने पूछा कि कोई ऐसा मंदिर है यहाँ? कहने हाँ, वो तुम पूछते जाओ सकतरी बाग, तो सकतरी बाग है, वहाँ पर एक मंदिर भी है और वहाँ वो तालाब भी है और एक दरख्त भी है वहाँ पर। बड़ा खुश हुआ, मैं पहुँचा वहाँ पर, देखा तो मंदिर जो है वो पहले आया है और मंदिर बिल्कुल गैर आबाद सा, ऐसा मालूम होता था कि पूजा यहाँ कोई नहीं करता है, शिव जी का मंदिर मालूम होता था। तालाब जो था उस पे ऊपर भी पानी के ऊपर काई थी, दरख्त जो था वो तालाब की पश्चिम की तरफ था, पश्चिम की तरफ था और अकेला दरख्त था। तो वहाँ एक आदमी से मैंने पूछा कि यहाँ कोई आदमी भी रहते हैं? कहने लगे थोड़े साधु कभी कभी आ जाते हैं, वो दरख्त है उसके नीचे वो भांग घोटते हैं, तो वहाँ वो भांग पी लेते हैं। अब भी 2-4 आदमी वहाँ खड़े हैं। मैंने कहा ये मंदिर नहीं है। रात सोचता रहा, सुबह मन में आया कि अरे वो मंदिर तो हो सकता है कि वो अमृतसर में जो दुखभंजनी बेरी है ना, वहाँ पर एक बेरी का दरख्त है कि उसके नीचे काग कब्बा नहाया था तो हंस बन गया था, और वो एक लूला था जो आदमी वो उसके हाथ पांव ठीक हो गए, वो था। तो मैंने कहा कहीं उसके बारे में ना कह रहा हो। तो फिर जब नेक्स्ट संडे, अगले इतवार को जब मैं वहाँ पहुँचा तो मैंने पूछा, स्वामी जी आपका मतलब इस तरह है कि मंदिर बीच में है पानी के और जो दरख्त है वो किनारे पर है? कहना हाँ। तो मैंने कहा स्वामी जी आप गए नहीं अमृतसर कभी? कहने नहीं, हमने कहाँ जाना है। यानी दिव्य दृष्टि से उन्होंने वो चीज़ देख ली, वहाँ वो ट्रेडिशन सारी उनको मालूम कर ली क्या है, और मुझे कहा कि वहाँ इसको कहते हैं, वो इष्ट का जिक्र जो मैंने कहा था वो ये हुआ, इधर ये हुआ। उधर 2-4 हफ्तों के बाद मैं जब पहुंचा तो स्वामी जी ने बाल रख लिए थे, दाढ़ी बढ़ा दी थी, सफ़ेद कमीज और नीचे धोती सफ़ेद तहमत सी बांधी हुई, बनारस के रहने वाले थे वो ओरिजिनली। तो वो मैं गया तो कहने लगे चलो तस्वीर खिंचाने चलेंगे। तस्वीर वहाँ खिंचा ली तो उसने कहा फोटोग्राफर के कि ऐसे बैठो, तो कहने लगे नहीं जैसे हम बैठते हैं वैसे ही तस्वीर लो। वो ले गए। वापस आ रहे थे तो रास्ते में छोकरे जा रहे थे, छोटे छोटे बच्चे, तो वो कहने लगे बाबा कहाँ गए थे? उनको सब जानते थे बाबा कहाँ गए थे। उनका काम ये था कि जितना चढ़ावा आता था वो सब माजूर बच्चों को दे देते थे। किसी का हाथ नहीं, किसी का पाँव नहीं, किसी कोई बीमारी है, वो यहाँ सब मंदिर में आ जाते थे तो सब उनको प्रसाद उनको देते थे। पहले उनको खाना खिलाते थे, बाद में खुद खाते थे। तो कहाँ जा तो कहने लगे ओ तस्वीर खिंचाने गए थे। तो वो सब हंस पड़े, कोई बड़े भी थे 14, 15, 16 वर्ष के। तो कहने लगे हमारी तस्वीर विलायत जाएगी। मैं हैरान हो गया कि इनकी तस्वीर विलायत जाएगी, ये क्या कह रहे हैं, कुछ पता नहीं मुझे। वहाँ मैं गया तो मुझे वहाँ से अमृतसर में इनविटेशन आया स्विट्ज़रलैंड से कि यहाँ पर हम योगा एंड योगा सिम्बोलिज्म पर एक कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर द स्टडी ऑफ साइंटिफिक स्टडी ऑफ सिम्बल्स। तो आप वहाँ पर पढ़िए पेपर, और साथ ये कि आपकी कुछ किताबें आपने अंग्रेज़ी भेज दीजिए, हम उसको ट्रांसलेट करके जर्मन में एक किताब छापेंगे। किताबें मैंने भेज दी, उन्होंने ट्रांसलेशन कर दिया। किताब का नाम रखा गया बॉटशेफ्ट चाइनीज योगी, मैसेज ऑफ ए योगी। तो उस वक्त उस शख्स ने मुझे चिट्ठी लिखी जो कॉन्फ्रेंस का सेक्रेटरी था उस पर्टिकुलर सेशन का, खास सेशन का, तो श्वाबे उसका नाम था। उसने मुझे लिखा कि आप अपने और अपने गुरु की तस्वीर भेजिए। तो मैंने उसको दोनों तस्वीरें भेज दी, तो वो उनकी तस्वीर विलायत छप गई।
दूसरा। उसके बाद मैं जिस वक्त गया यूरोप में वो कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए, तो वहाँ पर एक औरत मुझे मिली तो कहने लगी कि भाई मैंने तुम्हारी किताब बॉटशेफ्ट आइनिस योगी जर्मन में पढ़ी है, बहुत अच्छी किताब है, मगर मैं एक बात तुम्हें बताना चाहती हूँ। मैंने कहा फरमाइए। कहने लगा पिछली वार में, मैं जर्मन हूँ, यहीं ज़्यूरिख के पास रहती हूँ, मगर मैं उस ज़माने में इंग्लैंड में थी, नर्स थी, तो मैंने अपने आप को ऑफ़र कर दिया था आर्मी में ताकि मैं खिदमत करूँ। तो उस दौरान में मुझे एक रोज़ रात को सपना आया। स्वप्न में मैं एक बड़ा जंगल सा है, मैं उसके किनारे पर खड़ी हुई हूँ और सोच रही हूँ कि मैं कैसे जाऊँ, रास्ता नहीं मिलता। इतनी देर में एक आदमी आया, सिर से नंगा था, दाढ़ी इस तरह थोड़ी थोड़ी थी और सफ़ेद कमीज़ और नीचे वो तहमद सी पहनी हुई थी। तो वो आन के मुझसे अंग्रेज़ी में पूछता है कि व्हाट डू यू वांट। तो मैंने कहा कि देयर इज़ ए टेम्पल इन दिस फॉरेस्ट आई नो बट आई कांट फाइंड द वे। तो उसने अंग्रेज़ी में मुझे जवाब दिया, सुनिएगा ज़रा ध्यान से, वी हैव नो फिक्स्ड roads here, fixed roads here. Go on looking at the sun and keep clear of the shadows. Shadows. ये कह के वो गायब हो गया। अब जो मैं देखती हूँ ये बात है 1943 की या 42 की, और उस वक़्त था 1956 क्या 1958 था कि मैं, ये वो जो तुम्हारा गुरु है ना, ये वो आदमी है, और मैंने किताब भी उसी के लिए खरीदी थी, तुम्हारी तस्वीरें तो मुझे अच्छी नहीं लगी। ये हो गया। उसके बाद वो, मैं उस साल जब मुझे इनविटेशन आया कि कॉन्फ्रेंस के लिए आओ, फरवरी 1958 में, इतनी देर में स्वामी जी शरीर छोड़ चुके थे। 2-2.5 साल के बाद, मेरे ख्याल में 51 या 52 में उन्होंने शरीर छोड़ दिया था। मेरे पास एक ख़त आया अल्मोड़ा से, एक जर्मन लामा का, लामा गोविंदा अनगरी का, उसका ख़त आया कि मैंने आपकी किताब वो जो है मैसेज ऑफ ए योगी पढ़ी है जर्मन ज़बान में, मेरे पास रिव्यू के लिए आई थी, मैंने उसकी प्रशंसा की है और मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। मैंने कहा ठीक है। जिस रोज़ उसका ख़त आया है उस रोज़ से पहले, यानी आज सुबह ख़त आया है तो एक रात जो अभी गुजरी है और एक रात जो कल गुजरी थी। जो रात पहले गुजरी थी उस रात को मैं ध्यान में बैठा हुआ था तो मेरे सामने एक महात्मा आए जो बैठे हुए थे आलती पालती मारे, पद्मासन लगाया हुआ था उन्होंने। दूसरे रोज़ जो मतलब दूसरी सुबह फिर ख़त आता है तो दूसरी रात को एक और महात्मा आए, लंबे से, छोटी सी दाढ़ी, पेट सारा बड़ा हुआ, वो खड़े हुए थे। तो बस मैंने नोट कर लिया। तो चिट्ठी के जवाब में मैंने उन्हें ये लिखा कि माय डियर लामा, आपने जो लिखा है मेरी किताब की प्रशंसा के बारे में, ठीक है, मेहरबानी आपकी, मगर मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये दो मूर्तियाँ जो एक आज रात को मेरे सामने आई थी, दर्शन दिए उन्होंने, एक कल रात को, क्या आप इन दोनों में से आप थे जो आए थे?
तो अब ये चूँकि सारी चीज़ लिखी हुई है, उसकी चिट्ठियाँ मेरे मौजूद हैं, उसकी चिट्ठियाँ भी मैंने छाप भी दी हैं। तो उसने जवाब में, हाँ, फिर उसने लिखा था कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। तो मुझे उस जवाब देते वक्त मैं ये भूल गया कि मेरी तस्वीरें तो, और गुरु जी की तस्वीर भी तो किताब में मौजूद है, जर्मन किताब में, तो मिलने से क्या होगा। पर खैर मैंने लिख दिया। उस वक्त चूँकि मेरा अभ्यास बहुत ज़्यादा था और प्रभु की बड़ी कृपा थी, तो मैंने उसे लिखा कि तुम कोई सोच के नहीं लिखा, ऑफ हैंड जिसे कहते हैं, लिख दिया कि आप सुबह 3 बजे उठें किसी दिन और मेरा ध्यान करें और आप मुझे देख लेंगे। लिख दिया मैंने, दीवानापन समझिए या जो कुछ समझिए, फकीरों की बात है। 5 दिन के बाद उसका जवाब आया, जो अभी पड़ा हुआ है, प्रिजर्व मैंने किया हुआ है, प्रिंट भी कर दिया हुआ है, कि ये डॉक्टर सिंह, मैं 3 बजे तो नहीं उठ सका क्योंकि यहाँ अल्मोड़े में बड़ी सर्दी है। ये फरवरी की बात है, तो फरवरी 1958 की, 1958 की, कि मगर मैं कोई 5 बजे के करीब उठा था और उस वक़्त मैंने आपका ध्यान किया, आप आ गए और आपने आके एक स्तोत्र पढ़ा, उसका नाम है सदाशिव स्तोत्र, और संस्कृत में ऑब्वियसली था। तो मैं पूछना ये चाहता हूँ कि ये सदाशिव स्तोत्र आपका बनाया हुआ है या कोई पुराना है? अच्छा, अब इसमें मज़ेदार बात यह है कि मेरा जो योग का नाम है प्राप्ति का, वो सदाशिव है। वो उस किताब में आया हुआ है, जर्मन किताब में, और स्तोत्र का मुझे पता ही नहीं है। तो मैंने उनसे ये लिख दिया उनको कि मैंने कहा ये बातें जो हैं ये कागज़ पर नहीं आती हैं, ये अंदर की बातें हैं। उसके कई साल बाद, 3-4 साल बाद, मेरे रिटायर होने के बाद, रशिया से एक आदमी आया, उसने मुझे एक किताब दी जिसमें उसने बताया कि कज़ाकिस्तान में कुछ किताबें पुरानी मिली हैं, संस्कृत की भी, और किताबें जो पंजाबी में लिखी हुई हैं वो भी मिली हैं वहाँ पर 18वीं सदी की। और उन किताबों में उसने एक जिक्र किया सदाशिव स्तोत्र का, जो है संस्कृत में और पंजाबी हरूफ में लिखा हुआ। ये जो सिलसिला था ये सब चलता रहा और दिन गुजर गए। तो एक दफ़ा फिर मैं देहरादून गया तो स्वामी जी, एक स्वामी जी, मैं अपने दोस्त के यहाँ जो होम्योपैथिक डॉक्टर हैं उनकी क्लिनिक पर बैठा हुआ था, तो एक स्वामी जी आए, उन्होंने कोई दवाई ली तो चले गए। तो मेरा दोस्त जो डॉक्टर था उसने कहा, अरे तुम इन स्वामी जी को नहीं जानते हो, ये तुम्हारे गुरु भाई हैं? मैंने कहा नहीं। कहते जाओ, दौड़ के जाओ, ये मंदिर में गए होंगे। उस मंदिर में नहीं, ये सामने वाले मंदिर में गए होंगे। मैं चला गया उनके पीछे, तो मुझे वो कहने लगे कि तुम्हारा नाम, मैंने बताया कि मैं उनका शिष्य हूँ। अरे मैं तो 10 साल से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। मैंने कहा जी किस तरह? कहने लगे मैं वहाँ अजमेर में था, अपना हजामत करवा रहा था। वो साधु थे, हजामत करवा रहा था, सामने शीशा था और हजाम पीछे वो कर रहा था, बालों को काट पाट रहा था, जो कुछ भी। तो एकदम से मुझे शीशे में स्वामी जी की सूरत नजर आई। उनका नाम था महंत सुखदेव गिरी, हमारे गुरु जी का, मंडलेश्वर थे। तो वो उनकी तस्वीर, उनकी शक्ल नजर आई। तो मैंने फौरन समझ लिया कि स्वामी जी ने शरीर छोड़ दिया। मैंने उसी वक्त उससे नाई से कहा कि हटो, छोड़ो। वहाँ से मैंने गाड़ी लेकर के कुछ बस के रास्ते भी तय करके सारा, तो वहाँ पर पहुँच गया मैं हरिद्वार। तो उनको वो तो ला कर्म करने से पहले मैं पहुंच गया था वहाँ पर, तो मेरे सामने ही उन्होंने किया जो कुछ कहा, और फिर अस्थियाँ भी बुलाई। तो वो कहने लगा कि उन्होंने मुझे, देखिए टाइम का, कि बीच में तो मैं उन्हें मिला ही नहीं हूँ और उनको गुजरे हुए भी 10 साल हो गए थे।
कहने उन्होंने पहले ही मुझे कहा था कि अगर जिस वक्त मैं शरीर त्याग दूं तो तुम मोहन सिंह नाम का मेरा एक शिष्य है, वो अमृतसर में रहता है, उसके पास जाना और उससे कहना कि यहाँ आएगा और इस जगह पर आन करके उसको मेरा इनिशिएशन इस तरह से करना और उसको कहना कि ये गद्दी तुम्हारी है, अब तुम आ गए हो, तुम चलो। मुझे वहाँ स्वामी जी का जो स्थान था, वो मंदिर के महंत थे, वहाँ मुझे वो ले गया, ले जा के जो कुछ उन्होंने स्वामी जी ने कहा था, जहाँ वो तप किया करते थे उस जगह पर ले गया, वो विभूति ले करके यहाँ लगाई, ये लगाई, जो और भी जो कुछ करना किया। और उसने उसके अलावा उसने मुझे ये कहा कि स्वामी जी आपकी कुल में जन्म लेंगे, उन्होंने कहा था। घर में था, कुल नहीं कहा, उनके लिप्स ये थे को आपके घर में जन्म लेंगे। मैं ये समझता हूँ कि ये जो एक्सपीरियंस है सारा उनके संबंध में, ये बड़ा ही पुरमानी एक्सपीरियंस है, अनुभव है, क्योंकि बहुत सी बातें जिनका हम प्रूफ चाहते हैं, सबूत चाहते हैं, वो सबूत उस तरह हर एक को तो मुहैया भगवान करता नहीं है। उसका तो जो तरीका है वही है कि जो आदमी चंद अपने वो चुन लिए और उनके ज़रिए वो कहता है और वो वही उसके साक्षी होते हैं, गवाही होते हैं। इसीलिए ही तो कबीर जी की वाणी और वाणी के उनको साखियाँ कहा जाता है, वो विटनेसेस हैं। यही लोग जो हैं ये भगवान के असल में विटनेस हैं और ये बताते हैं। और मेरा यूरोप में जब एक्सपीरियंस, मैंने अमेरिका का थोड़ा सा जिक्र करना चाहता हूँ कि अमेरिका में मेरा एक्सपीरियंस अनुभव था वो सबसे अलग था। 6 साल में अमेरिका जाता रहा हूँ, 69, 70, 71, 72, 73 और 74 बराबर जाता रहा हूँ। और वहाँ स्वामी जी ने मुझे कुछ नहीं बताया था। जिस वक्त उन्होंने मुझे दीक्षा दी है वो वहाँ बैठ गए, मैं यहाँ बैठ गया और बस उन्होंने एक आसन ले लिया और इस तरह पर हाथ मुद्रा बना ली और कुछ नहीं कहा और कह दिया कि साहब हो गया। तो वो एक्सपीरियंस क्या हुआ मुझे उसके बाद, लाइट ज्योति का एक्सपीरियंस, ये हुआ वो हुआ। मगर जो बात मैंने पल्ले बांध ली कि जितनी चीज़ें हैं, चाहे वो योग आप किसी को देना चाहते हैं, भक्ति, या किसी को शक्ति देना चाहते हैं, किसी को और किसी तरह का कोई ज़रिया जो है किसी डिसिप्लिन में उसको बहुत ऊंचा दर्जा देना चाहते हैं, तो वो सब अंदर की शक्ति से होता है, बाहर से कुछ नहीं। चुनांचे मैं जिस वक्त फिर 69 में गया तो मेरे लेक्चर योग पर हुए YMCA में, डेटन में। तो उन्होंने $5 फी लेक्चर टिकट लगाया हुआ था। तो दूसरे रोज़, एक पहले रोज़ तो मैंने लेक्चर दिया, तो दूसरे रोज़ मैंने मना कर दिया कि मैं तो एक पैसा नहीं लूँगा और ना तुमको लेने दूँगा। पहले तो ये काम है कि अगर तुम इन चीज़ों में कुछ डील करते हो, इनसे तुम्हें वास्ता रखा है, तो पैसे को अलग रखो। उसके बाद वो लोग कहेंगे कि लेक्चर तो आपका हमने सुन लिया है, तो आप हमारी कुछ मदद भी तो करें, कुछ बताएं तो कि कैसे करते हैं। तो बस इसी पर मैं ख़त्म करूँगा कि मैं समझता हूँ ये जैसी चीज़ है कि आने वाली नस्लों को इसको ध्यान में रखना चाहिए और इसके ऊपर अमल भी करना चाहिए। और जिस तरह साइंस में होता है कि तुम ऑल नॉलेज इज़ ए कोऑपरेटिव एडवेंचर, वो भी इसको करें और देखें कि ये दुनिया जो है उस दुनिया से अलग नहीं है, दोनों एक ही हैं, ओत प्रोत हैं, मगर शक्ति कैसे आती है हर तरह की। तो मैं वहाँ गया तो मैंने ये किया, 6 साल जाता रहा और तमाम शहरों में, न्यूयॉर्क और बॉस्टन से लेकर के सैन फ्रांसिस्को तक गया, मिड अमेरिका में भी गया, ओमाहा वगैरह में। तो आप वाकई हैरान होंगे कि ये कैसे हो गया और ये आया, ये हो सकता है, मुमकिन भी है। वो ये कि मैं वहाँ लेक्चर के बाद उन्हें कहता था कि अब आप जो आदमी ध्यान करना चाहते हैं वो आप बैठें।
तो वो उनके सामने बेंच पड़े हुए हैं, कुर्सियाँ हैं, वो बैठ गए हैं। उनसे मैंने कहा भी कागज़ पेंसिल भी रख लो, उन्हें कागज़ पेंसिल भी ले ली। उसके बाद उन्होंने वो अपना बैठ गए। मैंने कहा आंखें बंद कर लो और 42 मिनट तक आंखें मत खोलना। हो गया, बंद कर ली उन्होंने। हाँ जी दोस्तों, ਇਹ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀਵਾਨਾ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਰੂਤੀ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੁਝ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈਆਂ। ਡਾਕਟਰ ਦੀਵਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਅਸਲ ਪੰਜਾਬ, ਮੁਕੰਮਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਦਾਨਿਸ਼ਵਰ, ਵਿਦਵਾਨ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਿਸ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੌਧਿਕ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨਮਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਇਆ ਨਾਲ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਦਵਤਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਸ ਯਾਦ ਦੇ ਸਹਾਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਮੁੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਿਰਜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਡਾਕਟਰ ਦੀਵਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 2 ਦਿਨ ਦੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗੈਪਸ ਰਹਿ ਗਏ, ਕੁਝ ਮਿਸਿੰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਅਤੇ ਔਰ ਇਹ ਫਿਨਿਸ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਲੇਕਿਨ ਇੰਨੇ ਬੜੇ ਸਾਡੇ ਚੰਗੇ ਭਾਗ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਸਕੇ ਜਾਂ ਸਾਂਭ ਸਕੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਜ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ YouTube 'ਤੇ ਵੀ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਲੋਹੜੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕੇ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਸੁਣ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਤੋਂ ਲਾਹਾ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀਵਾਨਾ ਜੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਡਾਕਟਰ JPS ਉਬਰਾਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਡਾਕਟਰ HS ਗਿੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਪੈਂਪਲੇਟ ਛਾਪਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੀਵਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਖਿਆਨ, ਉਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀਵਾਨਾ ਨਾਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਪ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਖਰੀ ਨੁਕਤਾ ਡਾਕਟਰ ਦੀਵਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੌਸ਼ਨੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਸੇਧ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਯੂ ਕੈਨੋਟ ਕਿਉਰ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਬਾਈ ਇਕਨੋਮਿਕਸ, politics by politics, art by art, science by more science, war by more war, lust by more lust, philosophy by deeper hair splitting, book pollution by more pictorial books. You shall have to inject some godism, humanism, naturism to counteract the fast spreading giantism, superism and latestism. Let us have literature and religion and politics of the people, by the people, for the people, and let there be only the one cult of selflessness. ਇਹ ਇੰਨਾ ਗਿਆਨਮਈ ਸੰਦੇਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੁਕਤੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜੇ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਇੱਕ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਰਵਾਇਤ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਸੱਜਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੈਕਚਰ ਸੁਣਿਆ,
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਸਰਦਾਰ ਟਹਿਲ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਪਿਕਚਰ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਸੀ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਫਿਲੋਸਫੀ ਦਾ ਐਨਸਾਈਕਲੋਪੀਡੀਆ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਂਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੀਵਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਆ, ਮੰਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸੁਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅੱਛੀ ਹੈ। ਤੇ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ, ਡਾਕਟਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਗੜ੍ਹਦੀਵਾਲਾ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ, ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ID ਗੌੜ, ਅਸ਼ਵਿੰਦਰ ਕੌਰ USA ਤੋਂ, ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਕੌਰ ਕਪੂਰਥਲੇ ਤੋਂ, ਸੁਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜਾੜਲੇ ਤੋਂ, ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਾਰਾਈ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਮੈਡਮ ਸਕੂਨ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ, ਸਰਦਾਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਲਿਕ, ਡਾਕਟਰ ਜਸਵੀਰ ਕੌਰ, ਸਵਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ USA ਤੋਂ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਦੀਦਾਰ ਛੇਤਰਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ, ਡਾਕਟਰ ਰਜੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ, ਕੇ ਗੋਪਾਲ, ਡਾਕਟਰ ਪਵਨ ਸ਼ਰਮਾ, ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ। ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਦੀਵਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁਆਂਢ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਦੀਕ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹਰ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਦੀਵਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਥਿੰਦ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇਹ ਲੈਕਚਰ ਸੁਣਿਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਲੈਕਚਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਵੀ ਪਿਆ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੌਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਬੱਬ ਬਣਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਸਰਵਣ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਖਿਮਾ ਮੰਗਦਾ, ਤੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ, ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਸਹਿਜ ਤੇ ਸੋਹਜ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਟੀਮ, ਹਰਮੀਤ ਕੌਰ, ਜਸਕਰਨ, ਕਮਲੇਸ਼, ਦਿਲਦਾਰ, ਮਹਿਤਾਬ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਰ ਵਾਰ ਮਦਦਗਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਮਵਰ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਪੰਜਾਬ